All right, next one says a tale of hardship and dedication, reconsidering the hiring policies of the biggest companies. Hello, Junaid Bhai. I hope this message finds you in good health and high spirits. I'm writing to you today because I want to share with you a story that's been weighing heavily on my mind. I recently had the privilege of being interviewed by a Pakistan's biggest IT software company's design team for the position of UI UX designer. After two grueling technical interviews, I was overjoyed to learn that I had been selected for the position and I humbly accepted the offer from the HR department. After some negotiation and careful consideration, I accepted the offer. However, my joy was short lived. During a subsequent phone call with HR, I inquired about the necessary documents required for the role. While discussing educational qualifications, I mentioned that I had completed a bachelor's degree in commerce comprising 14 years of education. However, I was informed that your company policy prohibits hiring candidates with less than 16 years of education. Consequently, I was advised to continue with my current employment. I respectfully attempted to persuade HR that my degree was not relevant to the role and that my work experience and expertise had already been assessed and deemed suitable by your design team. Unfortunately, this was to no avail as I was informed that the company would be held accountable if its hiring practices were audited. I am writing to express my belief that my educational qualifications should not be the sole determining factor in any candidacy for the role. As we are undoubtedly aware, there are numerous examples of highly successful individuals who have dropped out of determining factor in the dropped out of college and gone toward achieve success, such as Mark Zuckerberg of Facebook, Larry Ellison of Oracle. I'm proud to state that I was not a dropout, excelled academically from an early age. I consistently achieved the highest grades in my class and was a top performing student. However, due to untimely passing of my father when I was just 11 years old, my mother and I were forced to relocate to my maternal home where we faced financial difficulties. I had to seek employment to support my family, and completing my 14 years of education was a challenging journey that I persevered through with hard work and dedication. Today, I'm a valued and reliable member of my current company and have risen from humble beginnings in Shah Faisal small colony to more prosperous life at DHA. My goal has always been to provide for my mother and make her happy despite the many obstacles we have faced. Junaid Bhai, we live in Pakistan where there are thousands of talented individuals who lack a degree but possess the skill and dedication to succeed if given the opportunity. I would like you to shed some light on this matter through your video so that people in Pakistan can start thinking about their brothers and sisters who face similar problems. This is just not my frustration from being rejected, but a realization of why people are willing to snatch others' belongings and become increasingly extreme. It's because they know their fellow Pakistanis won't help them. Let me know your thoughts on the video regards. Alright, so एक साहब हैं, इनकी बड़ी humble beginnings रही हैं और बड़ी मेहनत से ये ऊपर तक आए, एक जॉब के इंटरव्यू पे गए, सब कुछ हो गया, जॉब भी फाइनल हो गई, सब हो गया. एंड में एचआर ने बोला हमें जी 16 साल की एजुकेशन चाहिए, इनकी 14 थी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि एचआर ने जो है किसी और को हायर करना था और वो आपको फजूल की गोली दी. आपकी जो डिग्री है वो इरेलीवेंट थी. कॉमर्स वाले का क्या काम यूआई यूएक्स में, और टेक और आईटी की फील्ड में सिर्फ एक्सपीरियंस देखा जाता है, डिग्रीज बिल्कुल नहीं देखी जाती. और ये बात सबको पता है और ये बात पाकिस्तान में भी लागू है. क्लियरली हुआ ये होगा कि आपकी सिलेक्शन डिपार्टमेंट ने की होगी, लेकिन फिर एचआर को या एचआर की तरफ से या उनको कोई डायरेक्टिव होगा कि भाई यहाँ पे हमारा बंदा लगाना है, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढना था और वो पॉलिसी में कोई ना कोई इस तरह की चीज़ निकाल के आपको. दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग. अदरवाइज आई डोंट सी एनी रीज़न. इफ़ यू वर फिट फॉर द जॉब, क्या 16 साल की डिग्री, अच्छा आपके एक पेपर होता है उसमें लिखा होता है जी 2014 की जगह 2016 में ग्रेजुएट हुआ है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाता. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वही काम आनी थी. So this is bullshit in my opinion. However, you've written your email very very nicely. I'm really proud of that. So good job. So clearly ये this was the case of nepotism. Most likely आपको sideline करके किसी और को रोल दिया गया है और ये बिल्कुल इसी तरह का मसला है और ये बड़ा प्रिवेलिंग है कि पाकिस्तान में जॉब्स सही कैंडिडेट्स को नहीं मिलती. इसीलिए मैं बारहा कहता हूँ भाई अपना नेटवर्क बढ़ाइए. अगेन आई एम नॉट एंडोर्सिंग नेपोटिज्म, लेकिन मोर देन लाइकली होता यही है कि आपको कोई आपके जानने वाला ही रेफ़र कर रहा होता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे अवॉइड गोइंग थ्रू द हैसल ऑफ गोइंग थ्रू 100 सीवीज और 500 सीवीज और फिर उसमें से कैंडिडेट बुला के वगैरह वगैरह. फॉर एग्जाम्पल, रही बात डिग्रीज़ की, जैसे कि मैं हमेशा बताया हाफ ऑफ माई टीम इज़ अंडर 20, तो उनके पास तो ग्रेजुएशन डिग्री भी नहीं है अभी तक, बट बिकॉज दे कैन वर्क, दे वर्किंग एंड दे डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब.
प्राउड ऑफ देम। अगेन एट द एंड ऑफ द डे मुझे काम चाहिए, मुझे उनकी डिग्री का क्या करना है, मुझे ये भी नहीं पता मेरे ऑफिस में कितने लोग मास्टर्स हैं, कितने ग्रेजुएट्स हैं। मैंने कभी किसी की डिग्री देखी भी नहीं, मैंने कभी किसी का सीवी भी पूरा प्रॉपर्ली नहीं देखा। मैंने सिर्फ सिस्टम पकड़ाया, ये वीडियो है, इसका ये करके दो, या कोई ग्राफिक डिज़ाइनर अगर हायर किया तो भाई ये मुझे एक पोस्टर बना के दो, दैट्स इट। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे हायर किए हैं कि आई डिडंट इवन नो दैट आई नीडेड देम, और उन्होंने कुछ बना के मुझे टैग कर दिया इंस्टाग्राम पे, एंड देन आई फाउंड आई वाज लाइक ओके दैट्स अ नाइस पोस्टर और दैट्स अ नाइस वीडियो एनिमेशन, एंड आई हायर्ड देम। एंड ऑल्सो फिर उसमें से जो सेकेंडरी हायरिंग हुई है वो इस तरह हुई है कि मोस्टली, अब जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर आई कैन सी ही इज़ ओवरवर्कड, तो मैंने उसको कहा कि अपना असिस्टेंट ढूंढ, अपने जैसा कोई ढूंढ लो एक। तो उसने अपने दोस्तों के ग्रुप में मैसेज मारा, कोई ना कोई आ जाएगा कल। सिमिलरली जो हमारा 3D एनिमेटर है, ही वॉज, आई डेंट वांट हिम टू ओवरवर्क, और मैं जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है मैं थोड़ा सा उस पर 2x स्पीड चाह रहा था, तो मैं बोला अपने जैसा एक और ले आओ। उसने बोला ठीक है, क्योंकि अब मैं वो पूरा पोस्टर बनाऊँ और फिर वो मैं इंस्टाग्राम पे डालूँ और लिंक्डइन पे डालूँ और फिर 500 ईमेल्स आएँ, फिर मैं उनको बैठ के क्यूरेट करूँ और फिर उसमें से क्यूरेट कह रहा हूँ सॉरी गो थ्रू करूँ, एंड देन फिर उसके बाद मैं लोग बुलाऊँ, फिर बेचारे लोग बड़े दूर दूर से आते हैं। अब ऑब्वियसली पीपल ओवर एस्टिमेट एज वेल। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं किसी को बुलाऊँ और फिर मुझे लगे कि यार इसमें वो वाइब नहीं है, फिर मैं यही सोचता रहता हूँ बेचारा इतना पेट्रोल लगा क्या होगा, या बाइक या करीम पे आया होगा। बट अगेन अब जॉब के लिए तो आना पड़ेगा ना, ये मैं तो नहीं उठ के आ सकता हर किसी के घर, तो ये फील होता है। कुछ लोग नहीं समझ पाते कि चाहिए क्या है, डिस्पाइट द फैक्ट आप जितना लिख के दे दो कि भाई ये एग्जैक्टली मुझे चीज़ें चाहिए। फिर कुछ लोग होते हैं आ जाते हैं मगर फिर वो कहते हैं कि हम फुल टाइम नहीं आ सकते, हालांकि लिखा हुआ था फुल टाइम। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा साइड बिजनेस भी चल रहा है, एंड आई एम लाइक कि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू मैनेज। वी जस्ट हैड अ ग्रेट कंटेंट राइटर बट अनफॉर्चुनेटली हैड टू लीव फॉर द सेम रीज़न, बिकॉज उसकी 4 जगह टांगें पहले ही फंसी हुई थी, तो वो क्लैरिटी नहीं देते पहले आके, फिर बाद में कहते संभल नहीं रहा और ये हो रहा है और ये हो रहा है। तो इसमें फिर ये वाले रिस्क होते हैं, आप हायर करते हो, सब चीज़ें करते हो, फिर वो चले जाते हैं फॉर वट एवर रीज़न। तो बेहतर यही होता है कि आप रेफरेंस के थ्रू, यार तेरा कोई जानने वाला है, रिलायबल है, अच्छा काम करता है, बुला ले कल से, ये ज़्यादा सही रहता है। अब ये कब होता है, जब आपका नेटवर्क अच्छा हो। फॉर एग्जांपल अब आप UI UX डिज़ाइनर हो ना, आप लोगों का कोई ना कोई फोरम होना चाहिए, कोई रेडिट कम्युनिटी होनी चाहिए, कोई फेसबुक ग्रुप होना चाहिए, कोई व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ आइडियाज़ भी शेयर करो, एक दूसरे के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करो। अब जैसे उसामा भाई पीछे बैठे हैं, ये सारी ज़िंदगी इन्होंने कैमरामैन का काम किया टीवीज़ में वगैरह वगैरह। अब मुझे शूट पे अगर कोई एक्स्ट्रा कैमरामैन चाहिए होता है, कोई मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होती है, कोई ड्रोन ऑपरेटर चाहिए होता है, मैं सिर्फ इनको बोलता हूँ ये 4-5 ग्रुप्स में है, ये उस पर लिख देते हैं यार कोई है अवेलेबल, मिल जाता है। अभी हम अटक पे हमने एक शूट करनी थी डॉक्यूमेंट्री के लिए, तो हमें एक बंदा इस्लामाबाद से चाहिए था, उन्होंने ग्रुप में मारा, लड़का मिल गया, उसामा भाई लेके चले गए उसको, अटक शूट हो गया। तो वो नेटवर्क में था बंदा, उसको काम मिल गया। इसी तरह यही वजह है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो जितना लोगों को जानोगे, पहचानोगे, उठोगे, बैठोगे, काम के लोगों में, फजूल लोगों में नहीं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में, और अच्छी अपनी एसोसिएशंस अच्छी जगह रखो, काम के लोगों में उठो बैठो, पीपल हु वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ। ये बैठ के बच्चियों की बातें करना और फ़ोन की बातें करना, चाय के होटल पे इमरान खान नवाज शरीफ ऐश कर रहे हैं यार, दे हैव द बेस्ट लाइफ इन द वर्ल्ड। मियाँ साहब का घर देखा है? अबे भाई जो लंदन में बैठे हैं ज़रा नीचे कमेंट करें, इनको बताएं पार्क लेन क्या वीआईपी इलाका है, कितना वीआईपी इलाका है, सही है ना। तो वो हाइट पार्क के बिल्कुल पीछे क्या लोकेशन है, इधर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, साथ में रीजेंट स्ट्रीट है, चिल कर रहे हैं यार वो, तुम लड़ रहे हो उनके पीछे, समझ रहे हो। इन चीज़ों से बाहर है, अपने ऊपर काम करें, क्योंकि आपके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देगा। आपको अगर लगता है कि ऊपर से फरिश्ते आएंगे आपके लिए एहतमाम करेंगे, कुछ नहीं होगा। यू आर ऑन योर ओन, एंड स्पेशली इन पाकिस्तान यू आर ऑन योर ओन, एटलीस्ट इन द वेस्ट, इन अ मोर सोशलिस्ट कंट्री। आपका चलो हेल्थ केयर लुक्ड आफ्टर होता है, आपका एजुकेशन लुक्ड आफ्टर होता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी चाइल्ड सर्विसेज होती हैं, आपके राइट्स होते हैं। यहाँ तो यूर ऑन योर ओन, आप पुलिस भी खुद हो, लॉयर भी खुद हो, डॉक्टर भी खुद हो, सब खुद कर रहे हैं। तो बिल्ड करो अपने आप को और अपना टाइम वेस्ट ना करो, और अच्छे लोगों में उठो बैठो, नेटवर्क बनाओ, और नेटवर्क से ही काम चलता है। 90% ऑफ द हायरिंग जो है वो रेफरेंसेस से होती है, वो इस तरह नहीं होती। ऐड ज़रूर डाल देंगे, बिकॉज कंपनीज की पॉलिसी होती है, बड़ी बड़ी एमएनसीज की पॉलिसी होती है, उनको उनका ऑडिट होता है, उनको दिखाना होता है कि देखिए जी हमने लिंक्डइन पे इतने ऐड डाले थे, इतनी स्पेंडिंग की थी, हमने अखबार में ऐड दिया था, हमने डॉन में दिया था, वगैरह वगैरह, और हायर वो अंदर से ही कर लेते हैं, समझ रहे हो। गेम ही यही है यार, सबको अपना टाइम बचाना है और सबको अपना अपना स्मूथ स्ट्रीम लाइन करना है चीज़ें। तो नेटवर्क अच्छा बनाए,
अब ये आपका जो केस था बेटा, ये तो सीधा सीधा नेपोटिज्म का केस था और ये किसी और को फिक्स किया गया आपकी जगह, बट इट्स ओके, स्काई इज नॉट इवन द लिमिट, रीच फॉर द स्टार्स एंड कीप ट्राइंग एंड कोई ना कोई बेहतरी होगी। हम तो फिर ये वाला एंगल भी ले आते हैं ना, कोई ना कोई बेहतरी होगी तो सही है, कुछ और ट्राई करें, दुनिया बहुत बड़ी है। एंड जस्ट वाई ओनली इन पाकिस्तान, यू नो, लोग एल्सवेयर एज वेल। लिंक्डइन इज ऑन योर डोमेन, लिंक्डइन का प्रीमियम अकाउंट लें भाई आप लोग, मैं कोई बेच नहीं रहा, मगर काम की चीज़ है भाई, टूल है दुनिया का सबसे बड़ा, उसमें अपने आप को पॉलिश करें, अपना प्रोफाइल अच्छा बनाएं, धड़ाधड़ हम भी वहीं से ही चीज़ें डाल रहे होते हैं। आज मैंने 3 जॉब पोस्टिंग्स डाली हैं उसमें, अगेन वाई, बिकॉज मैं रेफरेंशियल हायरिंग नहीं करना चाह रहा था इस बार, क्योंकि सीरियस रोल्स हैं थोड़े से, मैं चाह रहा था कि मैं खुद उनको बैठ के देखूं, तो वो अभी भी मैंने डाली है, तो इंस्टाग्राम पे मैं वो शेयर भी करता रहता हूँ, लिंक्डइन का वो मेरा कंपनी प्रोफाइल है। तो सो या कहीं कहीं आप टाइम जहाँ बचा सकते हो वहाँ लोग बचाते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको बहुत ज़रूरत होती है थोड़ा केयरफुली देखने की, तो वहाँ आपको ये भी करना पड़ता है। सो वी गोना डू दैट, अगले 2-3 दिन छांटी में निकल जाएंगे। सो या तो ये सीन है, बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट और अपना ख्याल रखो, और इन चीज़ों से उदास नहीं होना होता, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और ये नाकामियाँ जो हैं ये आपका फ्यूल बनती हैं आपको आगे पुश करने में। तो हमें नाकामियों का नाइट्रो चाहिए होता है कभी कभी फुल स्पीड में भगाने का, और ये यो ज़िंदगी का जब आपको ज़ोर से नीचे करता है आपको उतनी स्पीड से ऊपर आना होता है। सो वी नीड दीज रिजेक्शंस, गर्लफ्रेंड की रिजेक्शंस, ये सारी रिजेक्शंस बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, बड़ा बूस्ट देती है। सो लुक एट द ब्राइटर साइड, माशाल्लाह यू नो, हमने लिखा आप शाह फैसल से निकल के डीएचए आ गए। डीएचए में शाह फैसल में पानी नहीं, डीएचए में पानी नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट इट्स ओके, इट्स समथिंग, इट्स बेटर। ओके, ख्याल रखें और इंशाल्लाह आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर आपने ये क्लिप एंजॉय की तो पूरी वीडियो देखने के लिए मेरा YouTube चैनल आस्क गंजी स्वाग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई सवालात हो जिनके आप चाहते हैं मैं जवाब दूं तो मुझे जरूर भेजिएगा, मुझे आपके सवालात का शिद्दत से इंतजार रहेगा। आस्क गंजी स्वाग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।